السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سبھی پیارے بچوں کے لیے کلاس 10 کا اردو لے کر آیا ہوں، جو یہ اردو صفحہ 1 یعنی حمد کا ہوگا، اور اس حمد میں ہم لوگ سب سے پہلے صفحہ کے بارے میں جانیں گے، یعنی چیپٹر کے بارے میں، اور پھر اس چیپٹر سے ملی کچھ سوالات کو کریں گے۔ ایسے سوال جو آپ کے امتحان ہال میں پوچھے جا چکے ہیں، ایسے سوال کو ہم لوگ اس ویڈیو میں کریں گے۔ تو چلتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چلتے ہیں ہم لوگ چیپٹر کی طرف۔ پہلا چیپٹر، جس چیپٹر کا نام ہے حمد خدائے عزوجل، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ بڑھتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ یہ پہلا چیپٹر ہے، اس سے ہم لوگ جانیں گے۔ پہلا چیپٹر سے یہ صرف سادہ پیج ہے، اس میں ہم لوگ جانیں گے یعنی چیپٹر کا نام کیا ہے۔ چیپٹر کا نام ہے حمد۔ کیا نام ہے؟ حمد خدائے، حمد خدائے عزوجل۔ کیا نام ہے؟ حمد خدائے عزوجل۔ اور اس کے مصنف ہے یعنی لیکھک۔ اس کے لیکھک کون ہے؟ آپ کے ایگزام میں لیکھک سے یعنی مصنف سے ہی بہت سارے سوال آبجیکٹیو بنتے ہیں۔ تو اس کے مصنف ہے شبنم کمالی۔ کیا نام ہے؟ شبنم کمالی۔ کیا نام ہے؟ شبنم کمالی۔ شبنم کمالی اس کے مصنف ہے۔ تو اتنا بات یاد رکھیے گا، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ شبنم کمالی ہے، ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کا پہلا چیپٹر ہے، اردو کا پہلا صفحہ ہے، اور اس صفحہ میں حمد کے بارے میں پڑھا گیا ہے، اور اس حمد کو لکھنے والے مصنف کا نام شبنم کمالی ہے۔ یاد رکھیے گا، حمد کس نے لکھا ہے؟ شبنم کمالی۔ یہاں سے ڈائریکٹ سوال بنے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شبنم کمالی کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے، تو جانتے ہیں شبنم کمالی۔ یہ شبنم کمالی کا تعلق مطلب جڑاؤ کہاں سے ہے؟ ریاست بہار سے ہے، یعنی کہ یہ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں؟ بہار سے جڑے ہوئے ہیں۔ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں؟ بہار سے ان کا جڑاؤ ہے۔ کن کا جڑاؤ ہے؟ شبنم کمالی کا جڑاؤ بہار سے ہے۔ کہاں سے ہے شبنم کمالی کا جڑاؤ؟ بہار سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رجا ہے، یعنی شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رجا ہے، اور یہ اپنے نام میں تخلص لگاتے ہیں شبنم، یعنی کہ نام کے جو شروع میں آتا ہے یا آخر میں اسے ہم لوگ تخلص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ تو شبنم اپنے نام میں تخلص لگاتے ہیں۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ کہاں ہوئی ان کی پیدائش؟ ان کی پیدائش 1938 عیسوی میں پوکھرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات جو تھی، مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کی کئی مجموعے شائع ہو چکی ہے، یعنی کہ ادھکتر ان کا مجموعہ کس چیز پر شائع ہوا ہے، چھپا ہے؟ تو ادھکتر مجموعہ ان کا جو چھپا ہے وہ نعت پہ چھپا ہے۔ کس پہ چھپا ہے؟ نعت پہ چھپا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں انوار عقیدت کا نام آتا ہے، ریاض عقیدت کا نام آتا ہے، اس کے بعد ضیاء عقیدت کا نام آتا ہے، فردوس عقیدت کا نام آتا ہے، اور شہدائے عقیدت کا نام آتا ہے، شہبائے عقیدت کا۔ یہ سب ان کے کیا ہے؟ مشہور ہے۔ یہ سب ان کا لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، مشہور منظومات ہے، ٹھیک۔ غزلوں اور نظموں کی بھی کئی مجموعے شائع ہو چکی ہے، یعنی انہوں نے غزل بھی کیے، اور کیا کافی غزل بھی کی، اور نظم بھی انہوں نے کیا کیا ہے؟ لکھا ہے۔ آپ کے جو چیپٹر میں ہے نصاب میں، یعنی کہ آپ کے اس کتاب میں جو شامل ہے، اس کا نام حمد خدائے عزوجل ہے۔ کیا نام ہے؟ حمد خدائے عزوجل۔
जो किसने लिखा है? खुदाए अज़ वजल शबनम कमाली ने लिखा है। तो शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्या इस्लामी और मजहबी इक़दारी तलकीन में सर्फ की है। यानी इन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा किसमें गुजारा है? किसमें गुजारा है? इस्लाम में गुजारा है, इस्लाम के कामों में। और वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे? आशिक थे। क्या थे? अल्लाह और उनके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है? आशिक, आशिक सादिक थे। आशिक सादिक थे। चुनांचे अपनी तकरीरों और शायरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपनी भरपूर वल्हानत जज्बात का इजहार किया। उन्होंने अपनी तकरीर में क्या किया है? इस्लाम के बारे में बहुत कुछ लोगों को इजहार किया है, बताया है। तो इतना हम लोग पढ़ लिए मुसन्निफ के बारे में। और इस चैप्टर से जो आपको सवाल बनेगा एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव सवाल MCQ, सिर्फ और सिर्फ मुसन्निफ से बनेगा। तो हम लोग चैप्टर से जुड़ी सभी सवालात को करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहला सवाल की तरफ। आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, आप स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलते हैं आप पहला सवाल की तरफ। पहला सवाल है, जिस नज्म में अल्लाह की तारीफ की जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नात कहेंगे या हमद या कशीदा या गज़ल। तो याद रखिएगा, जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए, जिसमें किसकी? अल्लाह की तारीफ। किसकी तारीफ? अल्लाह की तारीफ की जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ अल्लाह की तारीफ की जाएगा उसे हम लोग हमद कहेंगे। और जहाँ हमारे हज़रत मोहम्मद की तारीफ की जाए, किसकी? मोहम्मद की, हज़रत मोहम्मद की, यानी नबी की तारीफ की जाए, हज़रत मोहम्मद की तारीफ की जाए नहीं, उसे हम लोग नात कहते हैं। ठीक है ना? तो कशीदा किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा, कशीदा किसको कहते हैं? जब हम किसी शख्स की तारीफ करें उसे हम लोग क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। जब हम किसी क्या करेंगे? किसी शख्स की तारीफ करेंगे, क्या करेंगे? किसी शख्स की तारीफ करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कसीदा कहेंगे। किसी शख्स की तारीफ करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कसीदा कहेंगे। गज़ल गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। जिस नज्म में रसूल पाक की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? जस्ट अभी बताएं आपको कि जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग नात कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे नात कहते हैं। क्या कहते हैं? नात कहते हैं। तो हम किसको कहेंगे आपको बता दिए। इसमें किसकी तारीफ होगा? अल्लाह की। किसकी? अल्लाह की तारीफ हो। कसीदा में किसी शख्स की तारीफ होगा, किसी शख्स की तारीफ होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल, जिस नज्म में किसी शख्स की तारीफ या हजू की जाए नहीं, यानी तारीफ हो या बुराई हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जस्ट अभी आपको बताएं, उसे हम लोग कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कसीदा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। एकदम वीडियो को बारीकी से देखिएगा। शबनम कमाली की पैदाइश, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई मरतबा ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, यानी उनका जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1938, 1940, 1911 और 1910। याद रखिएगा, जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में कि देखिए यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े हैं कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी। तो शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? 1938 में हुई थी। कितने तारीख को? 22 जुलाई को। कितने तारीख को?
जुलाई को 22 जुलाई को शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पोखरायरा में। कहाँ हुई थी? पोखरायरा। पोखरायरा पोखरायरा में। कहाँ हुई थी? पोखरायरा में। कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, पोखरायरा। पोखरायरा किस जिला में है? तो पोखरायरा आपका कहाँ है? सीतामढ़ी में। कहाँ है? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में है। कहाँ है? सीतामढ़ी में है पोखरायरा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? यानी शबनम कमाली किस राज्य से जुड़े हुए हैं? नहीं, वो किस राज्य से उनका रिश्ता है? ऑप्शन: बिहार, यूपी, बंगाल, हरियाणा। जस्ट अभी हम लोगों ने इनका जो थ्योरी पढ़ा है उसमें हम आपको बताए हैं कि शबनम कमाली का ताल्लुक, पहला ही लाइन मिल जाएगा आपको कि शबनम कमाली का ताल्लुक। देखिए हम आपको बता देते हैं, को लगता होगा कि नहीं ये सब गलत है, तो देखिए ये पहला ही लाइन है, आपको इस पहले ही लाइन में मिल जाएगा। देखिए शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत कहाँ से है? बिहार से। कहाँ से है? बिहार से। तो याद रखिएगा, शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है? बिहार से। बिहार के किस जिला से है? सीतामढ़ी से। बिहार के किस जिला से है? जिला कौन हो जाएगा? जिला आपको एग्जाम में पूछे तो याद रखिए, जिला कौन सा होगा? सीतामढ़ी। क्या आंसर होगा? सीतामढ़ी। ठीक है ना, सीतामढ़ी में क्या है? इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1938 को। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा, हसन रजा, अली रजा, इमाम रजा। तो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में कि इनका असली नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा है। क्या नाम है इनका? असली नाम मुस्तफ़ा रजा है। क्या नाम है? मुस्तफ़ा रजा है शबनम। तो इनका जो नाम है ये शबनम तखल्लुस है। क्या है? शबनम तखल्लुस है। तखल्लुस है। शबनम क्या? तखल्लुस। शबनम तखल्लुस है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हम्द के लग़वी मानी क्या है? यानी हम्द का मानी क्या होता है? आपको बताना है कि हम्द का मानी क्या होता है। वली की तारीफ, नबी की तारीफ, खुदा की तारीफ, इनमें से सब। तो हम्द की मानी क्या होता है? हम्द का मानी होता है खुदा की तारीफ। क्या होता है? खुदा की तारीफ। क्या होता है? खुदा की तारीफ। हम्द का मानी खुदा की तारीफ होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी किस शय में सर्फ की? यानी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे, किस हिस्से में गुजारे, कैसे? तो आप ऑप्शन देखिएगा, कारोबार में गुजारे अपनी ज़िंदगी, वाज़ व तबलीग में गुजारे अपनी ज़िंदगी, सियासत में गुजारे यानी राजनीतिक में, या नौकरी में। तो बताना है कि हम क्या नाम है, शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी किस शय में सर्फ की? तो वाज़ व तबलीग में की। किस में की? वाज़ व तबलीग में अपनी ज़िंदगी को गुजारे। ठीक है, आप थ्योरी पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा कि किस में गुजारे, तो वाज़ और तबलीग में। आगे बढ़ते हैं, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो ये तो हम आपको बता ही दिए हैं कि इनकी पैदाइश आपको कब हुई थी? 22 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 22 जुलाई को हुई थी। 22 जुलाई को हुई थी। कब? 1938 में पोखरायरा में। कहाँ हुई थी? 1938 में पोखरायरा। और पोखरायरा कहाँ है? सीतामढ़ी में है। और सीतामढ़ी कहाँ है? बिहार का एक राज्य है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। शबनम कमाली, ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपको लिखा है शबनम कमाली की वफ़ात। शबनम कमाली की वफ़ात, थोड़ा मिस्टेक है। आप ज़रा इसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। उर्दू टाइपिंग काफ़ी टफ होता है करना, और ये बहुत मुश्किल से जिसने भी बनाया है बहुत मुश्किल से बनाया है।
تو دیکھیں شبنم کمالی کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں. تو شبنم کمالی جو یہ غلطی سے ٹائپ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دھیان رکھیے گا. شبنم کمالی کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو شبنم یہ کمالی جو ہے، ایک منٹ رک جائیے، اس کو ہم صحیح کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے میں بھی بہتر لگے. تو کیا ہے سوال؟ شبنم کمالی ہے نا، شبنم کمالی کی وفات، شبنم کمالی کی وفات، ٹھیک ہے. شبنم کمالی کی وفات کب ہوئی؟ یعنی کہ وفات مطلب ہوتا ہے دیہانت، مرتیو، ڈیتھ. شبنم کمالی کی وفات کب ہوئی؟ تو شبنم کمالی کی وفات آپ پڑھیے گا تو کتاب میں ملے گا. کب ہوئی تھی شبنم کمالی کی وفات؟ 2006 میں. کب ہوئی تھی؟ 2006 میں ہوئی تھی. آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کی طرف. کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ یعنی اس زمین کو کس نے، اس پوری دنیا کو، اس پورے سنسار کو کس نے بنایا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کا جواب دے دے گا کہ اس پورے سنسار کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کی طرف. شبنم کمالی کو شاعری کے کس صنف میں شہرت ملی؟ یعنی شبنم کمالی جب شاعری کیے تو ان کو عزت کس شاعری میں ملی تھی؟ غزل میں، نعت میں، نظم میں، اور نظم کے بعد کیا ہے؟ مسدس میں. یاد رکھیے گا شبنم کمالی کو سب سے زیادہ عزت ملی ہے تو نعت میں ملی ہے. اب تھیوری میں بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ شبنم کمالی کو سب سے زیادہ عزت کہاں ملی ہے. دیکھیے یہاں پر لکھا ہوگا کیا؟ نعت. خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکی ہے نہیں، اور ان کو سب سے زیادہ عزت نعت میں ہی ملی ہے. آگے بڑھتے ہیں اگلا ہم لوگ جو سوال ہوگا اس کی طرف. ہم لوگ یہاں تک تو پڑھ چکے ہیں کہ شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے، تو پڑھ دیے. آگے کہاں تک ہے؟ یہاں تک آ چکے ہیں. ہاں، شبنم یہ تو حمد خدائے لغوی مانی ہے. آگے بڑھتے ہیں. شبنم کمالی اپنی زندگی کس شے سے ہے؟ یہ بھی پڑھ چکے ہیں، یہ بھی پڑھ چکے ہیں. آگے یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. یہاں ہیں ہم لوگ. شبنم کمالی کو کہاں ہے؟ نعت سے. آگے انوار عقیدت کس کی تصنیف ہے؟ تو انوار عقیدت کس کی تصنیف ہے؟ شبنم کمالی، اس کے بعد غالب، اس کے بعد جعفری، اس کے بعد ندا فضلی. تو شبنم کمالی کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا شبنم کمالی یا انوار عقیدت کس کی تصنیف ہے؟ تو انوار عقیدت شبنم کمالی کی ہے. انوار عقیدت اس کے ساتھ آج آپ کا کیا نام آئے گا؟ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، شعبۂ عقیدت، یہ سب شبنم کمالی کا کیا ہے؟ مشہور شعر و شاعری، مشہور شاعری ہے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے شبنم کمالی نے لکھا ہے. کیا کیا نام آئے گا؟ انوار عقیدت لکھ دیتے ہیں ہم آپ کو. کیا کیا نام آئے گا؟ انوار عقیدت، انوار عقیدت، انوار عقیدت، انوار عقیدت. آگے کیا آئے گا؟ ریاض عقیدت. کیا آئے گا؟ ریاض عقیدت، ریاض عقیدت، ریاض عقیدت. اور کیا کیا نام ہے؟ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، اور آپ کا نام آ جائے گا ضیاء عقیدت. کیا نام آ جائے گا؟ ضیاء عقیدت، ضیاء عقیدت، ضیاء عقیدت، ٹھیک ہے. اور کیا نام آ جائے گا؟ ضیاء عقیدت کے بعد آ جائے گا فردوس عقیدت. کیا آ جائے گا؟ فردوس عقیدت، فردوس عقیدت، ٹھیک ہے. اور بھی نام ہے فردوس عقیدت کے بعد ہے شعبۂ عقیدت. کیا نام ہے؟ شعبۂ عقیدت. یہ سب ان کا مشہور ہے، سب کا سب مشہور ہے. شعبۂ، لکھنا بہت ٹف ہے اردو.
सुहबाए सुहबाए अकीदत। ठीक है, सुहबाए अकीदत। आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। क्या क्या है? अनवार अकीदत, ये एक अनवार अकीदत। ठीक है, ये वाला अनवार अकीदत। ये है ज़ियाए अकीदत, ज़्वाद से है ज़ियाए अकीदत। ठीक ना, ज़ियाए अकीदत। आगे क्या है? रियाज अकीदत, ये आपका रियाज अकीदत, ये आपका फिरदौस अकीदत। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। शबनम कमाली की नात या शायरी के कितने मजमुए हैं? यानी शबनम कमाली नात या शायरी के कितने मजमुए इन्होंने लिखा है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन में 6, 5, 7 और 8। आंसर होगा आपका कितना होगा? 5 होगा। आंसर कितना होगा? 5 होगा आंसर। ठीक है ना, 5 होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। शेर में कितने मिसरा होते हैं? शेर में कितना मिसरा होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से सब? तो शेर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिसरा का एक शेर, 2 मिसरा का एक शेर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? यानी उनके नाम में जो नाम का पहला होता है, देखिए इस नाम में, ये नाम है, इसमें जो पहला अक्षर आ रहा है यानी साब का जो पहला आ रहा है उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो शबनम कमाली में पहले क्या आ रहा है? शबनम आ रहा है, तो शबनम क्या कहलाएगा? तखल्लुस कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? तखल्लुस कहलाएगा। अगर वीडियो आपको बेहतर लगता हो तो बराए मेहरबानी आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का आखिरी सवाल है, शबनम कमाली क्या है? अफसाना निगार है, शायर है, ड्रामा निगार और तनकीद निगार। याद रखिएगा, शबनम कमाली क्या है? एक शायर है। क्या है? एक शायर है। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द हम लोग फिर दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है।